So, a very good afternoon, everyone. Today, we are going to discuss the topic that is assisted reproductive technology, right? In the previous class, we have discussed about infertility and the management of infertility in male and in female as well, right? So, at that time, we have discussed like some of the terminologies under ART that I'm going to explain you today, right? So, let's start with it. So the content that we are going to discuss today is that is infertility that we have already discussed, right? Then we'll focus on ART, different techniques of ART, which is the main topic of discussion today. Then we will be discussing the negative aspects of ART, right? And recent trends of ART and the conclusion in the last, right? So infertility we have already discussed. So let's come to the main topic that is ART, right? So what is ART? So as the name indicates itself, that is assisted reproductive technology, right? So it is defined as a technology used to achieve pregnancy in procedures such as artificial insemination, in vitro fertilization, and surrogacy, right? So assisted reproductive technology जो है एक ऐसी टर्म है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वर्ड का यूज करते हैं प्रोसीजर का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं और सरोगेसी का यूज करते हैं. So the main three techniques are artificial insemination, then another one is IVF that we all know is in vitro fertilization, and the last one is surrogacy, right? Then number one comes artificial insemination. ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. So it is the deliberate introduction of sperm into the female uterus or cervix for the purpose of achieving pregnancy through in vivo fertilization by means other than sexual intercourse, right? So what actually is happening in artificial insemination, that there will be nothing like sexual intercourse. ठीक है, we will be introducing the sperm either into the female uterus or into the cervix for the purpose of achieving the pregnancy. ठीक है, IV in vivo fertilization के through. In vivo fertilization होगा इसमें, in vitro नहीं. ठीक है. So artificial insemination, so it may be of following type: intracervical insemination जिसमें हम cervix में रखेंगे, then है intrauterine insemination जिसमें हम uterine body में रखते हैं, then third one is intratubal insemination जिसमें हम ट्यूब में रखते हैं sperm को. ठीक है. So number one is intracervical insemination. So it involves injection of unwashed or raw semen into the cervix with a needleless syringe. Okay, needleless syringe will be there, and we will be introducing the unwashed or raw semen into the cervix of the woman. A vaginal speculum is used to hold open the vagina so that cervix may be observed and then syringe is inserted. ठीक है, तो क्योंकि cervix तब हमने access करना है तो हम vagina को vaginal speculum की help से जो है वो ओपन करते हैं ताकि हमें cervix जो है वो नजर आ जाए. ठीक है, और हम उसके अंदर सीमन को इंजेक्ट कर सके. ठीक है, द प्लंजर इज देन पुश्ड फॉरवर्ड एंड सीमन इज एम्प्टी डीप इनटू द वेजाइना, राइट? देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. ठीक है, सो द सेमिनल वेसिकल इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी. जो सेमिनल वेसिकल वो से हम लैबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे और विच इज वॉश्ड विद द स्पेशल मीडिया. इसमें जो है हम सेमिनल वेसिकल से जो सैंपल ले रहे हैं, जो सैंपल हम ले रहे हैं उसको हम वॉश करेंगे स्पेशल मीडिया में. ठीक है, विच इज इंजेक्टेड इनसाइड द यूट्रस विद कैथेटर आफ्टर स्टिमुलेटिंग द ओवरीज टू प्रोड्यूस मोर एग्स पर साइकिल. ठीक है, पहले इसमें हम ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो एग्स को रिलीज करे. ठीक है, और फिर हम सेमिनल वेसिकल जो होगा उसको हम वॉश करेंगे स्पेशल मीडिया के साथ, उसको फिर अंदर इंजेक्ट करेंगे. द कैथेटर यूज इज नोन एज टॉम कैट. ठीक है, ये याद रखना है आपने कि टॉम कैट कैथेटर जो होता है वो हम यूज करते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में, राइट? Am I clear with this? Okay. Then next comes intratubal insemination, right? So intratubal में it involves injection of the washed sperm into the fallopian tube. ठीक है, तो जो सिर्फ इंट्रासर्वाइकल इंसेमिनेशन होगा उसमें अनवॉश जाएगा. ठीक है, अदर देन दैट दोनों टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं इंट्राट्यूबल और इंट्रायूट्राइन, दोनों में हम वॉश रख रहे हैं स्पर्म. तो it should not be confused with GIFT, where both the eggs are mixed outside the woman's body and then immediately inserted into the fallopian tube. ठीक है, तो इसको हमने गिफ्ट जो होता है उससे हमने कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड इट इज लेस यूज देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. ठीक है, तो ज्यादा यूज कौन सा होता है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. देन नेक्स्ट आपका ये था आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट? नेक्स्ट आपका आ जाता है आईवीएफ. इसका नाम तो आप सबने सुना होगा. ठीक है, इसमें होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट?
सो इट इज द यूनाइटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म इन विट्रो, मतलब इसके अंदर हम एग और स्पर्म को जो है कहाँ यूनाइट करते हैं, लैब के अंदर, ठीक है। तो लैब के अंदर इसको हम यूनाइट करते हैं, इसलिए हम इसको इन विट्रो बोल रहे हैं। इन विवो में ऐसा नहीं था, जो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पढ़ा है। सब्सिक्वेंटली द एम्ब्रॉयज आर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, फिर जो एम्ब्रॉय बनता है उसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं थ्रू द सर्विक्स एंड प्रेगनेंसी इज अलाउड टू begin. It is a technique of letting fertilization of male and female gametes occur outside the female body. So इसमें what we are doing is we are allowing the fertilization to be occurring in the outside the uterine cavity or outside the फीमेल बॉडी, ठीक है। तो इसमें लैब के अंदर जो है वो हम फर्टिलाइजेशन इसके अंदर करवाते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड हमारे पास आ जाता है, एग बनता है, एम्ब्रॉय जो होता है, उसको हम ट्रांसप्लांट जो है वो अंदर ट्रांसफर कर देते हैं फिर यूट्रस के अंदर, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो आगे बढ़ती है। Then steps of in vitro fertilization. So here you can see the steps. ठीक है, number one step is ovary stimulation, ताकि ओवरी जो है वो एग प्रोडक्शन में, एग प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट हो, ठीक है। देन सेकेंड इज एग्स आर राइट फ्रॉम द ओवरी, फिर एग्स जो है वो हमने ओवरी से लेने हैं, राइट। देन आफ्टर दैट स्पर्म सैंपल इज प्रोवाइडेड, तो स्पर्म सैंपल लेके, ठीक है, फिर उसको हम एग और स्पर्म को कंबाइन करेंगे, ठीक है, to allow fertilization. And fifth one is embryo transfer, तो जो fertilized egg होगा that is introduced into the uterus after the fertilization process, right? So here are the 5 steps, and you can see these steps as it is occurring in this picture, as shown in the picture, right? So, okay. This is another picture showing in vitro fertilization process or steps of in vitro fertilization, starting from here, from the ovary. Then we will retrieve the eggs from the ovary. Then fertilization will take place outside the female body. Then we will transfer the embryo into the uterus like this. This is the fertilized egg, right? तो सबसे पहले स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे ओवरी स्टिमुलेशन। ओवरी स्टिमुलेशन मतलब क्या है कि हम ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज एग, राइट। So different hormones are given to female in order to stimulate formation of more than one ovum, ठीक है। तो इसमें हम जो मदर वुमेन होगी उसको हम हार्मोनल थेरेपी देंगे, ताकि जो स्टिमुलेट कर सके ओवरी जो है वो ओवम की प्रोडक्शन को। Then formation of more than one ovum for multiple zygote of or embryos to increase the probability for getting a healthy embryo, ठीक है। तो इसमें दे कैन बी फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओवम, ठीक है, जिससे कि मल्टीपल जाइगोट और एम्ब्रॉयज जो बन जाते हैं, जिससे कि एक हेल्दी एम्ब्रॉय जो है वो बाद में हमारे सामने आता है। ड्रग्स और हार्मोन्स लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है, और एचएमजी जिसको आप परगोनल के नाम से जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हम देते हैं इसमें, ठीक है। देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट हम इसके अंदर देते हैं पेशेंट वुमेन को, ठीक है। देन आफ्टर ओवरी स्टिमुलेशन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है दैट इज ओवोसाइट रिट्राइवल, ठीक है। सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिमूव द ओवोसाइट फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल, इनेबलाइजिंग फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एक टेक्निक है ये, जिससे कि हमने ओवोसाइट को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है, ओवरी से, ताकि हम फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के बाहर करवा सके। सो प्रोसीजर कैसे होता है इसका, ओवोसाइट रिट्राइव कैसे करते हैं हम ओवरी से, दैट इज इम्पोर्टेंट, and it is discussed as under this heading. Under ultrasound guidance, the operator inserts a needle through the vaginal wall and into an ovarian follicle, taking care not to injure organs located between the vaginal wall and the ovary. इसलिए हमने ultrasound guidance से जो है वो needle को insert करना है, ठीक है। The other end of the needle is attached to a suction device, जो दूसरा end होगा वो suction device से हम attach करेंगे. Then the follicular fluid and cellular material is suctioned with the needle. The procedure usually lasts 10 to 20 minutes. तो जो फ्लूइड वहां से लेना है वो आप लेके, और 10 से 20 मिनट में प्रोसीजर जो है वो सेट रिट्राइवल का खत्म हो जाता है, right? So what all I have explained in the procedure, you can have a picture over here and can imagine the procedure. You can see the procedure. Then after this sperm retrieval, so approximately 3 hours before the procedure, a semen sample from the male donor is obtained, ठीक है। So 3 hours प्रोसीजर स्टार्ट जब हो गया, ठीक है, उससे 3 घंटे पहले जो है वो आप सैंपल जो है वो पेशेंट से, मेल से आप ले सकते हैं, मेल डोनर से। The sperm is then washed and prepared for loading into the same catheter into which several of the female's best egg will be placed, right?
The eggs are obtained by transvaginal needle aspiration, जो भी हमने बताया अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस से हम लेंगे. Then we will allow the fertilization of that retrieved sperm and retrieved ovum. So after retrieval, ठीक है, both the जो both the germ cells जो होंगे they are brought together in a laboratory glass dish to allow the sperm to fertilize an egg. तो glass dish जो होती है आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर दोनों को आपने मीट कराना है. If sperm parameters are normal, approximately 50,000 to 1 lakh motile sperms are transferred to the dish containing the eggs. ठीक है, तो अगर sperm parameters normal हैं, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो जाता है. This is called standard insemination. Once fertilization takes place, one or more healthy embryos are transferred to the यूट्रस. ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जितने भी लाइक एम्ब्रॉयज जो है वो फॉर्म हुए हैं हेल्दी एम्ब्रॉयज, उनको फिर हम अंदर ट्रांसफर कर देंगे. The ICSI technique is utilized to fertilize mature eggs if sperm parameters are abnormal, right? So ICSI technique से जो है वो आप पता लगा सकते हो कि जो फर्टिलाइज मेच्योर एग हैं, ठीक है, उसके अंदर जो स्पर्म्स उसके पैरामीटर्स जो हैं वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है. सो दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड अंडर अ हाई पावर्ड microscope like this as you can see here in the picture. ये आपने स्टेजेस तो पढ़ी होंगी ना, फर्टिलाइजेशन होती है राइट, तो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, तो वो स्टेजेस हैं ये राइट. सो दिस इज अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. हेलो हेलो, am I audible? Hello. Yes, next is uh, gift हम इसे बोलते हैं, that is gamete intrafallopian transfer, right? So it is a tool of assisted reproductive technology against infertility. तो infertility में इस procedure का जो है वो use किया जाता है. Eggs are removed from a woman's ovary and placed in one of the fallopian tube along with the men's sperm. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ओवरी से एग को लाइक ओवरी जो है वहां से एग रिलीज होकर fallopian tube में आएगा और वहीं पे जो है वो हमने यस सॉरी, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, वुमेन के ओवरी से एग्स को जो है वो रिमूव करेंगे एंड उसको हम फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं अलोंग विद द मेंस स्पर्म. तो द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय स्टेप 2 एंड एडवर्ड्स. इट टेक्स एन एवरेज 4 to 6 वीक्स टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ द GIFT. ठीक है, तो GIFT में जो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने में 4 to 6 वीक्स का टाइम लग जाता है एवरेज. एडवांटेजेस क्या है, देयर इज नो मच ह्यूमन इंटरवेंशन इन द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग. ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो एक जैसे नेचुरल तरीके से होती है सेम वैसे ही होगी. ठीक है, तो इसमें इतना ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो नहीं लगाया गया है. Because fertilization takes place within the fallopian tube, GIFT offers an option for people whose religious belief prohibit conception outside the body. तो जो लोग चाहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जो है, कुछ लोगों के कल्चरल बिलीफ होते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होना चाहिए और वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये मेथड जो है वो बेस्ट है. Then disadvantages, it can be performed only if women have at least one normal fallopian tube. ठीक है, ये तब भी किया जा सकता है. Yes, ठीक है सर, डिसएडवांटेज ये है, can be performed only if women have at least one normal fallopian tube. सिर्फ fallopian tube का जो है वो होना बहुत जरूरी है, उसकी फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है. Then GIFT does not allow for visual confirmation of fertilization. इसमें हम visually confirm नहीं कर सकते कि fertilization हुई है या नहीं हुई है, जैसे कि हमने IVF में देखा था. Then GIFT involves a laparoscopic surgery. ठीक है, it involves a laparoscopic surgery, क्योंकि हमने sperm को जो है वो प्लेस करना है. Then zygote intrafallopian transfer, that is ZIFT. ये भी हमने पढ़ा था infertility के ट्रीटमेंट में, अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले लेक्चर में. So what we are doing in this is it is an infertility treatment used when a blockage in the fallopian tube prevents the normal binding of sperm to the egg. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हम तब करते हैं जब फिलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को नहीं होने देती है, जैसे कि हमने गिफ्ट में कर रहे हैं ना. तो जब फिलोपियन ट्यूब के अंदर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तब हम जिफ्ट का यूज करते हैं. एग सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द वुमेन्स ओवरी एंड इन विट्रो फर्टिलाइज. ठीक है, तो हम इसको हम एग्स को रिमूव कर लेते हैं और उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करते हैं. सो द रिजल्टिंग ज़ायगोट इज प्लेस्ड इनटू द fallopian tube बाय द यूज ऑफ लेप्रोस्कोपी. जैसे अब इंट्रा जिसमें आपने जैसे आपने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो इसमें ओवरीज को हम रिट्राइव कर लेंगे और उसको बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज करेंगे और फिर जो ज़ायगोट बनेगा उसको हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो है fallopian ट्यूब में फिर प्लेस कर देंगे. इट हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 64.8% इन ऑल द केसेस. तो सक्सेस रेट जो है वो इसका अच्छा है.
एडवांटेजेस इसमें आपके आ जाते हैं. फर्टिलाइजेशन कैन बी कंफर्म बिफोर दे आर इम्प्लांटेड इनटू द fallopian tube and it also allows a developing embryo to travel into the uterus on its own. ठीक है, क्योंकि fallopian tube में हम embryo को रख रहे हैं तो वो अपने आप से ट्रेवल करेगा ताकि वो यूट्राइन बॉडी तक पहुंच सके, which may be important to those who wish their baby to develop as naturally as possible. तो ये उनके लिए अच्छा है जो चाहते हैं उनका बच्चा जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वो ग्रो करे, राइट. देन डिसएडवांटेजेस हैं, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ए वुमन हैव एटलीस्ट वन नॉर्मल fallopian, तो इसके लिए fallopian ट्यूब का फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ये लेस एक्सपेंसिव है जीआईएफटी से, जीआईएफटी से लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है. देन जेडआईएफटी इन्वॉल्व्स अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अंदर भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो चाहिए होती है एज इन केस ऑफ जीआईएफटी. बस दो ओनली डिफरेंसेस, इसके अंदर जो है हम फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कर रहे हैं और उसके अंदर हम नेचुरल जो होती है बस स्पर्म को हम फ्लोपिन ट्यूब तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे ओवम बड़ा होगा और उनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लोपिन ट्यूब में होगी, तो नेचुरली वो थोड़ा सा करता है जो गिफ्ट है, राइट. देन नेक्स्ट आ गया आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है. तो स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग्स इन अ लेबोरेटरी, ठीक है. तो स्पर्म को हम लैब के अंदर ले जाके, ठीक है, डायरेक्टली एग के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं. सो यूज्ड इफ इनफर्टिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेल सच एज लो नंबर ऑफ स्पर्म, लो स्पर्म मोटिलिटी, तो उस केस में करेंगे जहाँ पे स्पर्म डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि लो नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं या फिर लो स्पर्म मोटिलिटी, और उस केस में single spermatozoon is directly injected into cytoplasm of the oocyte through the micropuncture of zona pellucida, ठीक है. तो एडवांटेजेस के वो हैं जहाँ पे स्पर्म में कोई डिफेक्टेड स्पर्म है वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस आपका आ जाता है, ऑल्टरिंग द नेचर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्पर्म कैन लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल एंड हेल्थ इशू फॉर आईसीएस चिल्ड्रन, राइट. क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस जो है वो उसके अगेंस्ट है, राइट. तो इसमें हो सकता है कि जो बच्चा है इस आईसीएसआई के थ्रू जो है वो बर्थ ले रहा है उसके अंदर कुछ फिजिकल या मेंटल जो है वो ग्रोथ इश्यूज हों. And even there are higher risk of miscarriages when the woman has conceived through ICSI because of the poorer genetic material involved, क्योंकि genetic material जो है इसमें बहुत ही पुअर क्वालिटी का जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, राइट. क्योंकि डायरेक्टली हम इसके अंदर ओवम के अंदर डायरेक्टली वो साइटोकास में डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि स्पर्म को, ठीक है, जोना पेलिसुडा को पंचर करते हुए, राइट. देन ये थोड़ा सा कंपैरिजन चार्ट आ जाता है, जैसे एआरटी के प्रोसीजर हमने पढ़े, आईवीएफ है, ये है जीआईएफटी, ठीक है, ये है आपका जेडआईएफटी एंड ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवरव्यू हुआ एक तरह से, ठीक है. इन विट्रो में क्या होगा, एग्स आर कंबाइंड विद द स्पर्म इन अ लैबोरेटरी डिश, फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, और एम्ब्रॉयड मेड अप ऑफ 2 or 4 सेल इज रिमूव्ड, ठीक है. सो एम्ब्रॉय इज देन ट्रांसफर्ड. और गिफ्ट में क्या होता है, एग्स और स्पर्म जो दे आर कलेक्टेड इन अ सिरिंज, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड स्पर्म आर ट्रांसफर्ड इनटू द fallopian ट्यूब, ठीक है. उसको हम कलेक्ट करेंगे सिरिंज के अंदर, और आईवीएफ में कैसे कर रहे थे हम, लेबोरेटरी डिश में, ग्लास डिश में हम उसको करवा रहे थे मीट, ठीक है. यहाँ पे हम सिरिंज में उसको इकट्ठा करेंगे और फिर उसको fallopian ट्यूब में इंजेक्ट कर देंगे. जिफ्ट में क्या कर रहे हैं हम, दे आर कंबाइंड विद स्पर्म इन अ लेबोरेटरी डिश, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विद अ सिंगल सेल एम्ब्रॉय, सिंगल सेल एम्ब्रॉय जो है वो हमने चूज करना है इसमें, ठीक है. फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जैसे जाइगोट बनेगा उसको फिर हम अंदर इंस्टॉल कर देते हैं fallopian ट्यूब में, ट्रांसफर कर देते हैं, सॉरी. हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन दोनों में चाहिए होगा, ठीक है. देन इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में सिंगल स्पर्म हम लेंगे मैन से, ठीक है, और सिंगल स्पर्म के को हम इंजेक्ट कर देंगे एग के अंदर लेबोरेटरी डिश में ले जाके, ठीक है. और जो फर्टिलाइज एग होगा उसको हम फिर वुमेन के यूट्रस में जो है वो प्लेस कर देते हैं, तो ट्रेवल नहीं करता है इसके अंदर, वो हम पहले से ही बॉडी ऑफ यूट्रस में प्लेस करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में. तो इसमें जो नेचुरल फिनोमिना है वो मिसिंग है, इसलिए ऐसे बच्चे जो कि आईसीएसआई से बर्थ हुआ जिनका, उनके अंदर फिजिकल और मेंटल थोड़ा सा जो ग्रोथ होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि पुअर जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट. और सिंगल एम्ब्रॉय लेके उसको अंदर हम सिंगल एग लेके उसके अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, ठीक है, आईसीएसआई में, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट. देन लास्ट आता है आपका सरोगेसी. तो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो एक सरोगेसी भी है, ठीक है. So surrogacy is when another woman carries and gives birth to a baby for the couple who want to have a
चाइल्ड, ठीक है। तो सरोगेसी जो है हम कब बोलेंगे, जब कोई और वुमेन, ठीक है, कैरी करेगी बेबी को एंड गिव बर्थ टू अ बेबी फॉर द कपल हु वांट टू हैव अ चाइल्ड, ठीक है। तो जो कपल चाइल्ड का डिजायर रखते हैं, ठीक है, उनको वो पर्टिकुलरली वो वुमेन सरोगेट मदर जो होगी वो बेबी बॉर्न करके उनको दे देती है। इट इज द कैरिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी फॉर intended parents. In this, a woman agrees to become pregnant and deliver a child for a contracted party. टू टाइप्स की इसमें आती है आपकी, वन इज ट्रेडिशनल सरोगेसी, अनदर वन इज जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ सरोगेसी एंड इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। So the surrogate mother uses an insemination kit to become pregnant using an intended father's semen, ठीक है। जो फादर होंगे डिजायर, जो कपल में से जो कपल होगा, ठीक है, उसमें जो फादर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना सीमेन जो है वो मदर को जो है वो देते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से जो है वो कंसीव करती है सरोगेट मदर जो होती है। देन आ गया जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होगा, इट इज फिजिकली मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर एक्सपेंसिव। हियर बोथ द एग्स एंड स्पर्म आर टेकन फ्रॉम द इंटेंडेड फादर एंड द मदर, ठीक है। तो जो कपल होगा उनके ही एग और स्पर्म होंगे, लेकिन वो सरोगेट मदर के अंदर जाके इम्प्लांट होंगे, ठीक है। सो दैट इज जेस्टेशनल सरोगेसी। देन नेक्स्ट आ गया आपका नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एआरटी। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एआरटी, हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट इसका यही है कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है वो हो सकता है एंड देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी। देन देयर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी व्हिच इज वेरी मच कॉमन। लाइक फराह खान, यू माइट हैव नोन द फेमस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर, ठीक है। तो उन्होंने भी आईवीएफ के थ्रू जो है वो कंसीव किया था। तो उनके भी आपको पता है ट्रिपलेट्स हुए हैं, है ना। सो देन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, then increased risk of premature labor, then it can also cause premature menopause and there will be increased risk of ovarian cancer at least by 3 times when compared to normal women, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या, ट्रेडिशनल में क्या है, सिर्फ जो कपल होगा, कपल में से फादर का सीमेन जो है वो सरोगेट मदर का एग होगा, उसमें सरोगेट मदर का एग होगा, लेकिन सीमेन किसका होगा, जो कपल में से फादर है, ठीक है। देन जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होगा, जो इंटेंडेंट फादर और मदर है, ठीक है, उन दोनों के जो जर्म सेल है वो लिए जाएंगे, फादर का स्पर्म लिया जाएगा और मदर का ओवम लिया जाएगा, उनको मीट करवाया जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द लैब, राइट। और मतलब आउटसाइड द सॉरी बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। और जो जाइगोट बनेगा उसको फिर इम्प्लांट करेंगे सरोगेट मदर के अंदर, तो दैट इज जेस्टेशनल सरोगेसी। तो दोनों के जर्म सेल जो है वो इन्वॉल्व है जेस्टेशनल सरोगेसी में, जबकि ट्रेडिशनल में सिर्फ जो फादर होगा उसका सीमेन होगा और एग किसका होगा, सरोगेट मदर का, राइट। So this is all about the topic that is assisted reproductive technology, right? So I hope this topic is clear to everyone, but still if you are having any kind of doubt, you are always free to ask for your queries, right? Thank you so much for paying attention. Thank you, Bacha.